السلام علیکم دوستو یہ دیدی کون ہے جسے عوام اپنی بڑی بہن کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور اس نے بھی سنگ دل دنیائے سیاست میں ایک مہربان بڑی بہن کا کردار اس انداز سے ادا کیا کہ جس نے اس کے ذہن میں اپنے چھوٹوں کے لیے جذبہ خدمت اس قدر موجزن ہوا کہ اس نے اپنی ذات کو بھی فراموش کر دیا۔ بھارت کی تاریخ کی واحد مثال جو مسلسل تیسری بار بھی بھاری اکثریت سے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئیں۔ ممتا بنرجی دنیا کی 100 طاقتور ترین اور بااثر خواتین میں شامل ہیں۔ یہ سیاستدان ہونے کے ساتھ بہت سی جہتوں کی امین ہے۔ یہ خاتون 87 بکس کی مصنفہ ہے، سینکڑوں گیتوں کی شاعرہ، موسیقار، مصورہ بھی ایسی کہ 300 سے زیادہ بہترین فن پارے تخلیق کیے۔ اس نے اپنی ان گنت خوبیوں کو اپنی عوام کے لیے وقف کیا اور نہایت سادہ بلکہ یوں کہیں کہ غریبانہ زندگی گزار دی، جس کی انوکھے انداز سیاست نے مغربی بنگال میں سب سے مقبول جماعت کمیونسٹ پارٹی کو شکست سے دوچار کیا، اور تیسری بار تو یہ ہوا کہ کمیونسٹ پارٹی کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو گئیں۔ آئیے اس شخصیت کا احاطہ مختصر انداز میں کرتے ہیں۔ ممتا بنرجی 1955 کو کلکتہ میں پیدا ہوئی۔ اس کے والد برہمن سیاسی کارکن تھے اور معاشی حوالوں سے تنگ دست تھے۔ ممتا کے بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بچپن میں سیاسی بلوغت تھی اور وہ پولیٹیکل میچورٹی ان کے بچپن میں ہی تھی۔ وہ مختلف موضوعات پر غور و خوض کرتی تھی، اور جب کالج پہنچی تو کسی مسلمان سہیلی نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات پر کتاب دی۔ کیونکہ اسے مطالعے کا بہت شوق تھا، وہ اکثر کتابیں پڑھا کرتی تھی۔ اس کا تجسس اوج ثریا کو چھونے لگا اور اسلامی تاریخ سے اسے آگاہی ہوئی۔ اس کے ذہن میں سوال جنم لیتے کہ کیسے ممکن ہوا کہ حجاز جیسے قبائلی اور جاہل سماج میں ایک انسان نے فقط کچھ عرصے میں انقلاب برپا کیا، بلکہ دنیا کی 2 عظیم امپائرز کو سرنگوں کرنے پر مجبور کر دیا۔ آخر اس میں کیا پوشیدہ خوبیاں پوشیدہ تھیں؟ ان خوبیوں کو تلاش کر میں مزید مطالعہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچی جو خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں میں تھیں، اگر وہ کسی میں بھی اخلاص کے ساتھ ہوں تو یقینی نتائج منتج ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ مال و متاع، عیش و آرام، نمود و نمائش سے بالا تھے، اور عاجزی ان کا ہتھیار تھا۔ انہوں نے سادگی کو اپنایا۔ اسی کی ایک وصف کو ممتا نے اپنی سوچ کا محور بنایا اور اسی اپنی ذات پر لاگو اس طرح کیا کہ وہ اس سوچ کی عملی تصویر بن گئی۔ ممتا نے طالب علم سیاست میں قدم رکھا، اسٹوڈنٹس لیڈر بن کر طلباء کے حقوق کے لیے سرگرم عمل ہوئیں۔ انہوں نے اسلامک ہسٹری، ایجوکیشن، قانون میں ڈگریاں لیں اور عملی سیاست میں قدم رکھا تو انہوں نے 29 سال کی عمر میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے بڑے مشہور رہنما سومناتھ چٹرجی کو انتخابات میں شکست دے کر ممبر پارلیمنٹ منتخب ہو گئی، اور اس کامیابی پر پورا ہندوستان ششدر تھا۔ 1984 میں دیدی لوک سبھا کی سب سے کم عمر ممبر تھیں، 6 بار اسمبلی کی ممبر منتخب ہوئیں۔ اٹل بہاری واجپئی اور منموہن کی حکومت میں 3 بار وزیر بنی۔ اس نے اپنی سیاسی جماعت آل انڈیا ترنمول بنائی اور اس نے ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ کامیابیاں حاصل کریں۔ اس نے وزارت سے پھر استعفیٰ دے دیا اور صوبائی الیکشن لڑا اور صوبے کی چیف منسٹر بن گئی۔ پارٹی نے 2021 کے الیکشن میں 292 نشستوں میں سے اس نے 213 نشستیں حاصل کر کے لینڈ سلائڈنگ کامیابی حاصل کی۔ حالانکہ ممتا کے صوبائی سیاست سے پہلے کمیونسٹ پارٹی 34 سال بلا شرکت و غیر
सूबे पर हुक्मरानी करती रही, क्योंकि इसी सूबे में इंडिया की बहुत सी सियासी जमातों ने मैदान में उतर कर देखा, लेकिन उन्हें यकसर ही कम्युनिस्ट पार्टी से शिकस्त हुई। और ऐसा कौन सा जादू था कि ममता ने कुछ ही अरसे में ही यहाँ की आवाम के दिल जीत लिए। कम्युनिस्ट पार्टी को 2021 के इलेक्शन में एक भी निशिस्त नसीब ना हुई, यानी क्लीन बोल्ड। ममता मुसलमानों और हिंदुओं के अलावा ख़वातीन में भी मकबूल है। उन्हें मुसलमान दोस्त होने का ताना दिया जाता है। नरेंद्र मोदी उन्हें बेगम साहिबा करके तंज करते हैं, लेकिन यहाँ मसला मज़हब से ज़्यादा उनकी तर्ज सियासत और खलूस का है। ये 11 साल से बंगाल की मुसलसल वज़ीर आला है। आइए इनके तर्ज बूदोबाश पर अब नज़र डालते हैं। ये हरीश चटर्जी स्ट्रीट में अपने वालिद के छोड़े हुए 2 कमरों के, जी हाँ फ़कत 2 कमरों के घर में रहती हैं। आज तक उन्हें वज़ीर आला हाउस में रहना पसंद नहीं किया, क्योंकि वो समझती हैं ऐसे घरों में क्यों रहा जाए जहाँ की ऊंची दीवारें आवाम में और उनके दरमियान हायल हो जाए। ममता जी ने अपने घर में कोई मुलाजिम नहीं रखा। उन्होंने आज तक बतौर वज़ीर आला कोई तनख्वाह वसूल नहीं की। सारी अखराजात ज़ाती जेब से अदा करती हैं। अब आप पूछेंगे उनके ज़राए आमदन क्या है, तो ये आमदन उनकी किताबों और केस्टों की रॉयल्टी है। उनकी किताबें बेस्ट सेलर का स्टेटस रखती है, जहाँ से उन्हें 5.5 लाख रुपए मिल जाते हैं, और उनकी पेंटिंग्स की आमदन भी होती है, जो वो मुख्तलिफ खैराती अदारों को डोनेशन दे देती हैं। किसी भी शख्स ने उन्हें रेशमी कीमती साड़ी मलबूस में होते नहीं देखा। कोई कीमती सैंडल नहीं पहनते देखा गया। मेकअप बिल्कुल नहीं करता, जेवर पहनने से इज्तनाब करती हैं। एक सरकारी गाड़ी है जिसे वो सिर्फ सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल करती हैं। कोई नेस्ले या कोई इस तरह का इम्पोर्टेड पानी वो नहीं पीती जो आम इंसान को दस्तयाब ना हो, इसलिए नलके का सादा पानी पीती है। अगर घर का फर्नीचर देखे तो खासा पुराना है। कभी कभार एक टोकरी हाथ में लिए ये ख़रीदारी के लिए निकल पड़ती हैं, और कोई हैरान इसलिए भी नहीं होता कि दुनिया की ताकतवर और बाअसर खातून जो 11 करोड़ शहरियों की वज़ीर आला है, किस तरह तरकारें लेने के लिए निकली हुई है। इसे जमहूरियत की आयरन लेडी कहा जाता है। यकीन करें, ये अपने हुलिया वज़ाक़ता से एक घरेलू मुलाजमा लगती हैं, लेकिन उसने सूबे में वो इनकलाबी नौयत के काम कर दिए हैं जिससे उन्हें तारीख़ में अमर कर दिया। सेहत, तालीम, सूबा इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन्स एम्पावरमेंट और रोज़गार, स्पोर्ट्स, मजहबी हम आहंगी और आबादारी की वो कंदीलें रोशन की जिसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिल सकती। ये जब मुसलमानों में जाती हैं तो उन्हें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और कुरानी तालीमात के बारे में आगाही देती है, और हिंदू में जाकर कहती है कि उन्हें अमन का दर्स देती है। अगर ममता की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो उनकी ताकत और कामयाबी की वजह उनका इखलास पर मबनी सादगी और आजिज़ी है। यही वो हथियार है जिन्होंने उन्हें कामयाब कर दिया। अब आए रियासत मदीना कायम करने वाले दावेदारों, और वो भी जो मुसलमान होने का फ़ख्र करते हैं। कभी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने हयात का मुताला तो करो ज़ालिमों। जब हज़ूर सल्लल्लाहु का विसाल हुआ तो नज़े का आलम था। कुछ वक्त के लिए तबीयत संभली तो अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत बीबी आयशा को कहा, घर में जो 7 दिनार थे वो आप खैरात कर दें। फिर कुछ देर के लिए फिर आपकी आंखें मूंद लीं। कुछ देर बाद जब उनको दोबारा होश आया, जब वो जागे तो उन 7 दिनारों का फिर पूछा, तो बीबी आयशा ने फरमाने लगी, जी मैं आपकी तबीयत की ख़राबी की वजह से परेशान थी, इसलिए खैरात का तो ख्याल ही दिल से निकल गया। तो हज़ूर ने क्या कहा? हज़ूर ने फरमाया, आयशा कि मैं अपने रब के सामने पेश हूँ और मुझे उन 7 दिनारों का हिसाब देना पड़े। आपने अपने साथियों की इस अंदाज से तरबियत की कि चारों खुलफा राशिदीन के वसाल के वक्त कोई माल और दौलत उनके पास ना थी। ये लोग पैवद में लगे, कपड़े पहनते थे, लेकिन ये बोरियां नशीनों की हैबत से कैसर और किसरा के दरबार लर्जा करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में जब उनके गवर्नर हज़रत अबू उबैदुल्लाह बिन जर्राह घर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत उमर ने उनकी ज़ाती मामलात ज़िंदगी के बारे में पूछा, तो हज़रत अबू उबैदुल्लाह फरमाने लगे कि दुनिया के मामलात ने उनको कहीं का नहीं रख छोड़ा। जब इस्तफ़सार किया तो मालूम हुआ आपके गुज़र बसर के लिए एक प्यारा, एक कंबल, एक खुरदरी सी
दरी है जो उस गवर्नर की पूरी मता है। ये देखकर हजूर की हज़रत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए। जी हाँ, यही वो रास्ता है। अगर उसे एक हिंदू ब्राह्मण औरत अपना ले तो धान पान की ये औरत ना सिर्फ हुकूमत की रेट कायम कर देती है बल्कि दुनिया उसे आयरन लेडी के नाम से याद करने लगती है। पूरी दुनिया इस्लाम के तमाम सुल्तानों हुक्मरानों के ठंडे रुखसार पर उस ब्राह्मण औरत का जन्नाटेदार थप्पड़ है। बहरहाल सादगी और आजिज़ी के साथ खिदमत का जज्बा किसी के अंदर भी मौजूद हो तो यकीन माने किसी भी तौर पर अवाम उसे फरामोश नहीं कर सकेंगे। वो जिस्मानी तौर पर चले जाने के बाद भी लोगों के दिलों पर राज करता है और हमेशा ज़िंदा रहता है। अब फैसला उन लोगों का है जो सियासत के मैदान में हैं कि क्या उन्होंने उस अहद में जीना है या लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रह जाना है। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।